नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन भाटिया आपका स्वागत करता हूं। ये 28 नवंबर को एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड की गई थी नोएडा के ग्लोबल इंटरनेशनल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में, जो कि जुजुत्सु की एनुअल जनरल मीटिंग के लिए प्रॉपर प्लेस था, जहां पर सभी अधिकारियों ने हिस्सा लिया और इस मीटिंग में पूरे साल का एजेंडा डिस्कस किया गया। नए अधिकारी नियुक्त किए गए तथा पुराने जो अधिकारी थे उन सबका रिटायरमेंट एक्सेप्ट करवाया गया। तो अभी हमारे सामने नए अधिकारी जो अभी अपना भार संभाल रहे हैं वो सब मौजूद हैं, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब ने इसमें हिस्सा लिया। तो आइए देखते हैं एनुअल जनरल मीटिंग जुजुत्सु एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से। श्रीमान गणेश शर्मा जी, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, ग्लोबल इंटरनेशनल अमित जी से निवेदन करूंगा कि श्रीमान गणेश शर्मा जी का अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत। आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि श्रीमान गणेश शर्मा जी खुद मार्शल आर्ट के खिलाड़ी रहे हैं। Firstly, I welcome all of you in this meeting, and especially I feel honored and privileged that today I have got this opportunity to welcome such a gathering, and I would like to extend my heartfelt gratitude to Mr. Ganesh Sharma ji, Principal Global Indian International School Noida, who has always extended a helping hand and has always been there to support and guide us. Ladies and gentlemen, I am really pleased to announce that he has been appointed as a Senior Vice President of Jiu-Jitsu Association of Uttar Pradesh. And to the greater heights. And now I would like to invite him on the podium to share a few words of wisdom from his vast knowledge and experience. Namaste and very good morning to all. First of all, thank you so much for this special day that we are here, and special thanks to Mr. Amit and his team, Jiu-Jitsu Federation of Uttar Pradesh. Ever since the beginning, from my childhood when I was a student, I was very close to all the sports. Almost I play everything, but martial art was very close to my heart. And almost for more than 12 to 14 years, I think, I've been in different competitions and all, India and abroad. And when Mr. Amit came to me and when we got associated for some other reason, I was very happy when he shared this news that this is what the foundation is going to be. Believe me, our generation in India, the new generation of all the children, we need to motivate them for play games and sports. That's very, very important, because it's not like our time when things were limited. Nowadays, exposure, possibilities and opportunities are many more in our life. So it is our responsibility to encourage all the students, whether it is in school, outside school, at home, everywhere, that at least one game, one sports everybody should take. In my school, I have told my students that one game you need to play. You choose whatever you like. Similarly, martial art is very important for girls and boys. We know the importance of it. And I'm sure that this federation, with these all initiative and all the people in the federation, the senior members, I'm sure that we'll work in collaboration
and we will definitely and certainly take this organization, these endeavors to the greater heights. And I'm sure the benefit will go to the young generation. Thank you so much. God bless you. Mr. Vinayak is the son of Mr. Ganesh Sharma, and we are very we are just here just for their full support. But now, at the last, we are waiting for the upcoming president, Mr. Devraj Gachal. Within a minute, he is here. So after that, we are going to start the agenda for next 2021 JJAUP Electoral General Body meeting. Thank you. मार्शल आर्ट्स की जो विधा है, जो हम लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, कराटे और जूडो, ये मार्शल आर्ट्स की बहुत पुरानी विधाएं हैं और बड़ी फेमस विधा है। उसी प्रकार से जुजुत्सु भी मार्शल आर्ट्स की प्राचीनतम विधाओं में से एक है। इस जुजुत्सु के द्वारा ही जूडो जैसी कला का जन्म हुआ। जुजुत्सु इज द मदर ऑफ जूडो, और कराटे जो हम सुनते हैं खेल, उसके डेवलपमेंट में जुजुत्सु का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज से कई सौ सालों पहले जब ये मार्शल आर्ट्स के विकसित होने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो उस समय पर आज जो हमारे बीच में जो मार्शल आर्ट चलते हैं, ये इस प्रकार से नहीं हुआ करते थे। एक युद्ध कला हुआ करती थी, और उस युद्ध कला को उस समय की जो राजा, जो जापान के राजा हुआ करते थे, उनके द्वारा इसको जुजुत्सु के रूप में खेला जाता था। तो किक पंच के साथ साथ थ्रोइंग और लॉकिंग और चोकिंग की सभी टेक्निक्स उन सैनिकों को सिखाई जाती थी। और धीरे धीरे समय के साथ साथ जो जूडो और कराटे जैसे खेलों के जो जनक हुए हैं, उनके द्वारा जुजुत्सु में से थ्रोइंग की टेक्निक्स को अलग कर दिया गया और किक पंचेस की टेक्निक को अलग करके कराटे और जूडो जैसी विधाओं का जन्म हुआ। किंतु जूडो और कराटे जैसे खेलों को पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। वो पहचान हमारे को, हम सभी लोगों को हमारे बचपन से लेकर के और आज तक भी हम देखते हैं, फिल्मों के माध्यम से और विभिन्न मीडिया के माध्यम से बहुत मिली। हम लोग फिल्मों में जिक्र करते हैं तो ब्रूस ली का जिक्र करते हैं, देखते आए हैं ब्रूस ली की मूवीज़, लेकिन ब्रूस ली की मूवीज़ को हमने अक्सर इस चीज़ से जोड़ा कि वो कराटे करते हैं, तो उस तरीके से हमको कराटे का नाम याद हो गया। उसी के साथ साथ जूडो का नाम भी हमको याद हो गया। लेकिन जुजुत्सु वो खेल है जो उस प्रकार से लोकप्रियता नहीं पा पाया, किंतु पिछले 2013 वर्ष 2013 से इंडिया के अंदर जुजुत्सु का रीबॉर्न हुआ, जुजुत्सु का रीबर्थ हुआ। एक दोबारा से जुजुत्सु को इंडिया में इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई, और इस कोशिश में अंतर्राष्ट्रीय जुजुत्सु फेडरेशन और जुजुत्सु यूनियन ऑफ एशिया का बहुत बड़ा योगदान रहा। 2013 में ही पहली बार जुजुत्सु को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा मान्यता प्रदान की गई, और 2014 में पहली बार जुजुत्सु को 2018 में होने वाले 18वें एशियाई खेलों में शामिल किया गया एक रेगुलर स्पोर्ट के रूप में। और आज मैं आपको एक बात बताते हुए गर्व महसूस करूंगा कि जुजुत्सु जो मेरे पास डाटा है उसके हिसाब से जुजुत्सु 2034 तक होने वाले एशियन गेम्स, जो कि अभी अगले साल 2022 में हांगझाओ चाइना में होने वाले हैं, 2026 में जापान में होने वाले हैं, 2030 में दोहा सऊदी अरेबिया में होने वाले हैं, और उसके बाद 2034 कतर में होने वाले हैं। उन सभी 2034 तक के एशियन गेम्स में जुजुत्सु एक रेगुलर स्पोर्ट के रूप में एंटर हो चुका है। हमारे साथ जुड़े हुए जो भी कोचेस हैं या जो भी खिलाड़ी हैं, उनके लिए
जुजुत्सु में एक स्वर्णिम भविष्य है। स्वर्णिम भविष्य किस सेंस में है वो मैं बताना चाहूँगा कि अभी जुजुत्सु इंडिया के अंदर अपनी चाइल्डहुड स्टेज में है, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन अभी नहीं है। ये स्थिति सिर्फ इंडिया में नहीं है, हमारे आसपास की जो एशियन कंट्रीज है वहाँ पर भी अभी जुजुत्सु अपनी डेवलपिंग स्टेज में है। तो हमारे से जुड़े हुए जो खिलाड़ी हैं वो शायद थोड़ा कम एफर्ट करके भी ऊंची छलांग पा सकते हैं, ऊंची छलांग लगा सकते हैं। इंडिया से बाहर जाकर के खेलने के लिए, ऐसे इवेंट खेलने के लिए जैसे एशियन गेम्स है, एशियन इंडोर गेम्स है, एशियन इंडोर मार्शल आर्ट गेम्स है, उन खेलों में जहाँ पर खिलाड़ियों के दल को भारत सरकार और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा भेजा जाता है, उन सभी खेलों में हमारे सभी खिलाड़ी जो कैपेबल हैं वो शायद थोड़े प्रयास में ही अपनी जगह सुनिश्चित कर सकते हैं। और अगर मैं अपने जुजुत्सु के खिलाड़ियों का या इस खेल का कंपैरिजन अगर मैं उन खेलों से करूँ जो इस्टेब्लिश हैं, चाहे वो जूडो है, चाहे वो कराटे है, चाहे वो कोई अन्य गेम है, उसमें अभी हमारे जो भी खिलाड़ी हैं वो उनको मेहनत के साथ साथ कंपटीशन ज़्यादा झेलना पड़ता है या ज़्यादा झेलना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छे लेवल पर खिलाड़ी खेलते हैं। तो वो सभी खिलाड़ी जिनको कराटे या जूडो में खेलते खेलते या किसी अन्य मार्शल आर्ट में खेलते खेलते कोई मुकम्मल जगह नहीं मिल पाई है, तो वो सब अपना लक या अपनी प्रैक्टिस को जुजुत्सु में आजमा सकते हैं और एक अच्छी पोजीशन पर जाकर के खेल सकते हैं। मैं खुद एक कराटे खेल का खिलाड़ी रहा हूँ। 1989 से मैंने कराटे की शुरुआत करी और मैं लंबे समय तक कराटे से जुड़ा रहा। मेरे साथ यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो इस बात को जानते हैं। लेकिन 2014 में जब मैं पहली बार जुजुत्सु से जुड़ा और उसके बाद आने वाले 2 साल 2016 में जुड़ने के दूसरे साल ही मुझे इंडिया की उस टीम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला जिसको भारत सरकार और इंडियन ओलंपिक के द्वारा भेजा जाना था एशियन बीच गेम्स के लिए वियतनाम में। और उस गेम में जाने तक फ्लाइट में बैठने से करीब 2.5 घंटा पहले तक मेरे मन में व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था, बहुत ज़्यादा टेंशन थी। ये शंका मन में लगी हुई थी कि क्या ये जिस ट्रैक पे हम जा रहे हैं ये वास्तव में है, हम लोग क्या वास्तव में इंडियन ओलंपिक की तरफ से खेलने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये आज तक सिर्फ सुना था इतने सालों में। लेकिन उस दिन जब बॉम्बे एयरपोर्ट पर भारतीय ओलंपिक संघ के प्रतिनिधि के द्वारा एयरपोर्ट पर हमको हमारी पूरी किट दी गई, ऑफिशियल किट, वो किट जिसको पहन के हम एक ओलंपिक इवेंट में मार्च पास्ट में जाते हैं अपने देश की तरफ से, वो किट मिलने के बाद, वो ब्लेजर मिलने के बाद मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और वो एक ऐसा मौका था, आप में से मुझे लगता है सभी लोगों ने एक मूवी देखी होगी, भाग मिल्खा भाग। भाग मिल्खा भाग में एक सीन है, उस सीन में मिल्खा सिंह की ड्रेस का, उसके ब्लेजर का नाप लेने के लिए टीम के दर्जी आते हैं, वो उसको चेक करते हैं और जब वो उस ब्लेजर को पहनता है तो उसमें यहाँ पर इंडिया लिखा होता है, इंडिया लिखा था। तो वो जो पल उसने फील किया था, शायद ऐसे कुछ पल मुझे और मेरे साथ के सभी लोगों को फील हुआ कि आज मैं वास्तव में इतने सालों की जो मार्शल आर्ट सीखने की तपस्या थी वो उस दिन उस ब्लेजर को पहन के सफल भी महसूस हुई कि नहीं यार, आज लिटरली मैंने एक ऑफिशियल ब्लेजर पहना है। और उस ऑफिशियल ब्लेजर को पहन के एक ऑफिशियल इवेंट में जाना और उसके बाद अपने नेशनल फ्लैग को पकड़ते हुए मार्च पास्ट में, जहाँ पर हमारे साथ एशिया की 32 और कंट्री जो जुजुत्सु करती हैं उन सभी खिलाड़ियों को 1 by 1 आना और उस परेड में हमारा भी जाना, वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा गर्व देने वाला क्षण था। और वही चीज़ का जो रिपीटेशन था वो 2017 में मुझे फिर से प्राप्त हुआ। 2017 में एशियन इंडोर गेम्स की ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा कराया जाता है। तो
तुर्कमेनिस्तान में वो गेम आयोजित हुए, उसमें भी सेम हमको इंडिया का ब्लेजर, इंडिया की किट पहनने का मौका मिला। बहुत ही ज़्यादा अपने आप में रोमांचक लगने वाला क्षण था। 2018 में जो एशियन गेम्स इंडोनेशिया जकार्ता में हुए, उसके लिए भी टीम इंडिया के कोच के रूप में मेरा नाम सेलेक्ट हुआ, लेकिन लास्ट में हमारे जैसे जुजुत्सु के साथ साथ बहुत सारे कुछ ऐसे गेम थे जिनकी एंट्रीज को इंडियन ओलंपिक के द्वारा रोक दिया गया। लगभग 1000 कुछ खिलाड़ी थे, उनमें से कुछ 500 कुछ खिलाड़ियों को ही IOA ने अप्रूव किया। और यहाँ पर बैठे हुए लोगों में से एक हमारे एथलीट हैं जिनका नाम उस टाइम पर क्वालिफाई किया था एशियन गेम्स के लिए, अमरजीत लोहान पीछे बैठे हैं। ये भी उस दल के क्वालिफाइड मेंबर थे इंडिया की तरफ से। और अब इनका टारगेट और हमारा टारगेट आने वाले अगले साल चाइना में होने वाले एशियन गेम है, और एशियन गेम में मैं भगवान से पूरी उम्मीद करा के बैठा हूँ और आप सब लोगों का ब्लेसिंग रहेगा तो टीम जुजुत्सु इंडिया पार्टिसिपेट करने के लिए भूल जाएगी। भले ही 4 खिलाड़ी जाएँ, भले ही 8 खिलाड़ी जाएँ, टोटल 16 लोगों की एंट्री इस बार इंडिया से जानी है। जितने भी लोग जाएंगे बस जुजुत्सु गेम उसमें जाना चाहिए। एक बार गेम की एंट्री होती है तो उसके साथ साथ काफ़ी सारे लोगों के रास्ते खुल जाते हैं। बात को थोड़ा शॉर्ट में बताते हुए आपको बताना चाहूँगा कि इसी साल अगस्त के महीने में भारत सरकार खेल मंत्रालय के द्वारा जुजुत्सु को नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के रूप में भी मान्यता दे दी गई है। हमारा खेल भी अब खेल मंत्रालय का सदस्य बन चुका है। और इसी के साथ साथ किसी भी खेल के लिए, किसी भी खेल संस्था के लिए देश में, हमारे देश में 2 सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनकी मान्यता इम्पॉर्टेंट होती है। एक भारत सरकार खेल मंत्रालय, दूसरा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। और इसी 5 सितंबर को हमारे जुजुत्सु इंडिया के द्वारा भारतीय ओलंपिक संघ को एफिलिएशन के लिए लेटर प्राप्त हुआ, फुल मेंबर्स का लेटर प्राप्त हुआ। और उसके बाद किसी भी नेशनल फेडरेशन को जो मेंबरशिप फीस जमा करनी होती है, वो फीस जमा करने तक का जो सफ़र है वो हम पूरा कर चुके हैं। और शायद इस 19 दिसंबर को जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की नई सभा बनने जा रही है, नई कार्यकारिणी बनने जा रही है, तो जुजुत्सु को भी हमारी उसमें मान्यता मिलने का रास्ता खुल जाएगा। श्याम जी से कि वो सबका विधिवत तरीके से स्वागत करें। देवराज भाईचंद जी, I request all the dignitaries please settle down on the stage. So, without any further, we are going to start the election process. So, please settle down all of you. मंच पर उपस्थित श्रीमान देवराज रायचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि जुजुत्सु खेल को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में मेंबरशिप दिलवाने में देवराज जी का एक बहुत योगदान रहा है। मैं उसके लिए ये हमारे खेल को एक नेशनल फेडरेशन के रूप में भारत सरकार से मान्यता दिलवाने में उन्होंने जो अपना सहयोग दिया और पूरे जुजुत्सु फैमिली को आशीर्वाद दिया, उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी हैं जो कि खुद कराटे के बैकग्राउंड हैं, उन्होंने इस वार्षिक बैठक के लिए और इलेक्शन की प्रोसीडिंग के लिए हमको अपने विद्यालय का प्रेमिसेस
इस्तेमाल करने की आज्ञा दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रोहिदास जी, जो कि पिछले 3 वर्षों से अमित जी के संपर्क में हैं और उनका गाहे बगाहे बैकडोर से और सामने से हर प्रकार से सपोर्ट रहता है अमित जी को खेल के उत्थान के लिए और खेलों के काम के लिए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सचिन जी, जो अमित जी के मित्र भी हैं, रिश्तेदार भी हैं और इस खेल को लंबे समय से समझ रहे हैं, जान रहे हैं और हमारे साथ विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश की टीम के एक अभिन्न अंग के रूप में काम करते हैं और अमित जी को उत्तर प्रदेश एसोसिएशन संभालने में अब तक उनका बहुत विशिष्ट योगदान रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। मेरे साथ मंच पर मोहित जी मौजूद हैं, जो हमारे कार्यक्रम के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और हमारे बचपन के मित्र भी हैं और मार्शल आर्ट के खिलाड़ी हैं, रेड हैं कराटे के। और सबसे अंत में बैठे हुए पवन सिरोही जी, जिन्होंने अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से चेंज किया, कराटे करते करते जिजुत्सु में अपने आप को कन्वर्ट किया और जिजुत्सु का एक इवेंट होता है नेवाजा ग्राउंड टेक्निक, जो कि कराटे के किक पंचेस की टेक्निक से बिल्कुल अलग है। उन्होंने अपने आप को मात्र 1.5 से 2 साल में इतना पॉलिश किया कि आज नेवाजा की वो सारी टेक्निक्स जो मैं भी नहीं जानता हूँ, उनको उनका बहुत महारत हासिल है और आज उनको एक महत्वपूर्ण नैतिक जिम्मेदारी उनको सौंपने का एक विचार हम सब लोगों ने किया है। आने वाले वक्त में वो जिम्मेदारी आपके सामने हम लोग प्रस्तुत करेंगे। आज की इस कार्यकारिणी की बैठक के लिए जो हमारा एजेंडा है, उस एजेंडे में इलेक्शन की प्रोसीडिंग के साथ साथ कुछ शुरुआती स्टेप है, उसके बारे में मैं उत्तर प्रदेश जिसू के महासचिव अमित अरोड़ा जी से अनुमति चाहूँगा कि मैं इसके बारे में प्रोसीडिंग शुरू करूँ। थैंक यू। आज की मीटिंग का डिटर्मिनेशन और कोरम कंप्लीट है और उसके बाद आज की मीटिंग की वेलकम स्पीच, जो कि बहुत ही ब्रीफ स्पीच होनी चाहिए, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और जो उत्तर प्रदेश जिजित्सु की जो एनुअल रिपोर्ट है पिछले वर्ष की या थोड़ा सा पिछले विगत वर्षों की, उसके बारे में मैं अमित अरोड़ा जी से निवेदन करूँगा कि वो आकर के एक बार सभी लोगों को अवगत कराएं। अमित जी। हमें जैसे कि विनय सिन्हा ने आपको बताया कि पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, उसका विवरण मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करूँगा।